بلوچستان کے علاقے نوشکی میں دالبندین روڈ پر سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی، اسپتال منتقل۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ کوئٹہ میں کرانی روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 1 اہلکار شہید، 6 زخمی، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب تھا۔ جو ججا گینگ جو ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے، وہ ایک بہت ہی آپ لائق تحسین کام کیا آپ نے اپنی ایفرٹ سے۔ یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں اور اس کالے دھندے میں ملوث ہیں، اس نے پاکستان کی نظر بے پناہ بدنامی کرائی ہے، بلکہ بیچارے لوگ اب کشتیوں میں سوار ڈوب گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ججا گینگ کی گرفتاری پر FIA اور IB کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے بہترین کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کو 10-10 لاکھ روپے کی انعامی چیک اور شیلڈز دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عثمان ججا یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات کا ذمہ دار ہے۔ کالے دھندے میں ملوث افراد نے پاکستان کے تشخص کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ چند ماہ میں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے بری خبریں آئیں۔ انسانی اسمگلنگ جیسا کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ ایسے عناصر کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے ادارے اپنی کارروائیاں مزید تیز کریں۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرنے والے افسران نے ملک کو عزت بخشی۔ قوم انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے حملے، 3 سیکورٹی اہلکار شہید۔ پشاور میں پولیس چوکی پنجخندی میں مسلح افراد کا حملہ، اہلکار شہید۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار۔ تھانہ خزانہ پر حملے میں کانسٹیبل زخمی۔ ٹانک میں پولیس چوکی نسران پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی، اسپتال منتقل۔ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر راکٹ سے حملہ کیا۔ کرک میں مسلح افراد نے 3 مقامات پر حملے کیے۔ کرک کے 2 تھانوں پر حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایسک خماری میں گیس کے دفتر پر حملے میں سیکورٹی اہلکار شہید۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی پر 1 حملہ آور مارا گیا، مغوی اہلکار بازیاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور اور کرک میں مختلف مقامات پر خوارج دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت۔ شہید FC اہلکار سمیت 3 پولیس جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ محسن نقوی نے کہا، شہدائے قوم کا صدمہ افتخار ہیں، لازوال قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، فتنہ الخارج کے 9 دہشت گرد جہنم واصل خارجیوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع مہمند میں آپریشن، 7 خارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی، 2 خارجی ہلاک، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن ISPR۔ پشاور کے علاقے اربڑ میں مدرسے کے باہر دھماکہ، مفتی منیر شاکر جاں بحق، 3 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں 600 گرام بارودی مواد استعمال ہوا۔ دھماکہ خیز مواد مسجد کے چھوٹے گیٹ کے سامنے نصب تھا۔ مفتی منیر شاکر جیسے ہی اس گیٹ سے مسجد میں داخل ہوئے، دھماکہ ہو گیا۔ بلوچستان کے ضلع کچری کے علاقے مشکاف میں ریلوے ٹریک اور اطراف کے علاقے کلیئر قرار۔ متاثرہ ٹریک کی مرمت کا کام آج سے شروع ہوگا۔ ٹریک کی مرمت کے لیے سبی اور مچھ سے ریلیف ٹرین روانہ۔ دہشت گردوں کے حملے میں جعفر ایکسپریس کے انجن سمیت 5 بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ 382 فٹ ٹریک کی مرمت میں 8 سے 10 گھنٹے لگیں گے۔ کوئٹہ سے چمن کے لیے ٹرین سروس بحال۔ پیسنجر ٹرین 4 روز معطل رہنے کے بعد آج روانہ ہوگی۔ کوئٹہ سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس بدستور معطل۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے بعد سے ٹرین سروس معطل ہے۔
खैबर पख्तनख्वा को विफाक से मिलने वाले इंसदादी दहशतगर्दी फंड्स के खसूसी ऑडिट का फैसला। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तनख्वा हुकूमत से फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। 2010 से 2024 तक माहाना और सालाना कितना फंड जारी हुआ। ऑडिटर जनरल का मनासला, खैबर पख्तनख्वा को 14 साल के दौरान 535 अरब के फंड्स जारी हुए। दस्तावेजात तैयार, साल 2024 में फंड्स 86 अरब रुपए तक पहुंच गया। टीम बदली, कप्तान बदला, कारकर्दगी ना बदली। कौमी टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में बदतरीन परफॉर्मेंस, बैटिंग चली ना बॉलिंग। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में एक तरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो, पूरी टीम की विकेट के सामने 91 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट। नायब कप्तान शादाब खान 3 रन पर चलते बने। सलमान आगा 18, जहांदाद खान 17 और अब्दुल समद ने 7 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 32 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से जैकब डिफी ने 4 और काइल जेमिसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने 92 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। टिम सेफर्ट 44 रन बनाकर नुमाया रहे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लीवी में 10 रुपये लीटर इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। लाइट डीजल पर लेवी 7 रुपये 75 पैसे लीटर। हाई ऑक्टेन पर लेवी 50 रुपये फी लीटर कर दी गई। लेवी बढ़ाने से 16 दिनों में 50 अरब रुपये का आमदन मुतवक्के। लेवी बढ़ाने से मौसूल इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च की जाएगी। हुकूमत का बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी का फैसला। तेल की कीमतें बरकरार रखकर आवाम को बिजली की कीमतों की मद में फ़ायदा दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का पैकेज तैयार है। ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई पर भी असर पड़ेगा। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हवेली कहूटा आज़ाद कश्मीर में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ भाग, 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। हुकूमत में शमूलियत के लिए हुक्मरान हमारी मिन्नतें करते रहे। रियासत खतरे में है। PTI से मामलात में तरक्की कम हुई है। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI क़यादत को नोटिस लेना चाहिए। शेख वक़ास अकरम और इनके बड़ों से मेरा ताल्लुक है। एक तरफा फैसले बंद ना किए गए तो मुल्क की सियासत में हलचल मचेगी। हम अपोजिशन होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। आसिफ जरदारी इंजॉय कर रहे हैं। जब हम निकलेंगे तो ये कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें। अवाम पार्लियामेंट से नाराज हैं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। जिला सतह पर कारकुनान के इज्तिमायात का इनेकाद किया जाएगा। सिंध में डिविजनल सतह पर बड़े जलसे होंगे। बिलावल भुट्टो अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। PP चेयरमैन की पीपल्स पार्टी सिंध को जलसों का शेड्यूल देने की हिदायत। ईद और 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श जलसे के बाद राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों की गवर्नर हाउस में अहम मीटिंग। दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। कौमी मफाद के मंसूबों पर अमल दरामद और राब्ता कमेटियों के हर माह इजलास मुनक्किद करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है। दोनों जमातें तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सिंध कौंसिल का इजलास। दरियाई सिंध पर कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ करारदाद इत्तफाक़ी राय से मंजूर। सिंध कौंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस सानिहा की मज़म्मती करारदाद भी मंजूर। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल का सदर आसिफ जरदारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर इत्तमाद का इजहार। शहीद जुल्फ़कार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश।
कराची बिजली, पानी और गैस से महरूम है। कराची पाकिस्तान की मैशत चलाता है, यहाँ के शहरियों को इनका हक दिया जाए। गवर्नर सिंध कामना डिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। कराची में बानियान पाकिस्तान की औलादें रहती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, इनकी औलादें पाकिस्तान बचाएंगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तारीख़ी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टेयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीख़ी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। शहरों की असल और कदीम सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब नहीं। यूरोप में सदियां गुजरने के बावजूद पुराने महलात और इमारतें असल हालत में मौजूद हैं। कौमी वर्सा को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। जगह जगह तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं। अमेरिका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले यमनी हूथियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में रेडार, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर का कहना है कि हूथियों का वक्त ख़त्म हो चुका। हूथियों ने हमले बंद न किए तो हालात संगीन होंगे। ईरान को फौरी तौर पर हूथियों की हिमायत ख़त्म करनी चाहिए। हमले बंद न हुए तो अमेरिका ईरान को जवाबदेह ठहराएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, यमनी हूथियों का अमेरिकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूस यूक्रेन जंगबंदी पर आलमी रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। केयर स्टारमर ने खिताब में कहा, पुतिन यूक्रेन पर में वहशियाना हमले रोके और जंगबंदी करे। अमन मुआहदे के लिए रूस पर दबाव बरकरार रखना होगा। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां से होने फोर्सेस का ड्रोन हमला। सहाफ़ी समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली बहरिया की गजा के साहिल पर बमबारी, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 48,524 हो गई। 1,11,955 अफराद ज़ख्मी हो चुके। हमास के इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, नेतन्याहू जंगबंदी के कामयाब दिफा से खौफज़दा हैं। गजा पट्टी के मुहासरे से रिहायशी और इसराइली कैदी भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मक़बूज़ा मग़रबी किनारे में तशद्दुद में इजाफे की मज़म्मत। फ़लस्तीनियों पर इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ बरतानिया में मुजाहरा। दारुल हुकूमत लंदन में मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी के लिए मार्च। शहरियों के फ़लस्तीनी झंडे लेकर एहतजाज में शिरकत। इसराइल को जंगी हथियारों की फ्राहमी बंद की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ओहदे से मुस्तफ़ी। अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा ने इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया। सिराजुद्दीन हक्कानी के वज़ारत की जिम्मेदारियों से तवील गैर हाज़िरी भी इस्तीफ़े की वजह है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले में भी इख्तलाफ़ात हैं। अमरीकी रियासत कैंसास में तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 26 हो गई, मुतादिद ज़ख्मी। तूफान की शिद्दत से सैकड़ों गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ रियासतों में शदीद तूफान की पेशगोई कर दी।